Hello, guys. Good evening. I hope everyone is doing well, and welcome to the episode 3 of Right Talk with Dharmil, me, and with Parul. Parul will join us in a minute. So today we have topic related to future, everything related to digital marketing and everything, how it will work in future, what is the importance of online marketing post lockdown or during this period, and how it will work in future. All these things we'll be discussing it today, and during the discussion, if you have any questions, you can just drop us a message in live, and we'll solve those queries. If you have any doubts, we'll solve those doubts, as well as uh, post our discussion, we will keep the forum open for questions, and you can drop your queries during that period as well. Okay, so give me a minute, I'll just connect with Parul. Kamil, how are you? I'm fine, how are you? Can you hear me? Am I audible? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yeah, you're clear. Okay, so first of all, I would like to welcome everyone to yet another live session with Right DigiSoul. And today, again, we are going to talk about all about digital marketing, its scope, and what are the changes which are there post lockdown and in lockdown period, how COVID has affected. Okay, so. First of all, thank you guys for a wonderful engagement in the previous live sessions which we had. Okay, we received a lot of questions. बहुत सारी queries आई हैं, questions आए हैं जिनका हम definitely answer करेंगे by the end of the session. लेकिन सबसे पहले धर्मिल आई वुड लाइक कि आप एक बार लाइट थ्रो करिए कि आज हम किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं and what are the two important topics on which we are going to discuss. Yes, डेफिनेटली. सो आज हम दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. एक टॉपिक रहेगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग का क्या इम्पोर्टेंस रहेगा पोस्ट लॉकडाउन, एंड सेकंड टॉपिक विल बी फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. So, as you said that we have received a few queries that we'll solve during the session and post our discussion. So this two topics will be our focus. But guys, you can drop us queries during the session related to anything related to digital marketing. It is not that यही दो टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेरीज रहेगी और आप ड्रॉप करेंगे. I guess your voice is not coming, Parul. I cannot hear you. I cannot hear you. I can see you, but I cannot hear you. Yeah. Now, Dharmil, am I audible to you? Yes, I can hear you now. So Yeah, it's during better. the I think session, there is some problem in the earphone. yeah, now it's better. Now it's better. Can you hear me properly now? Yes, you're absolutely clear. So So the first as said topic, yeah, during the query, yeah. yeah, yeah. Go ahead, Parul. So the first topic on which we are going to discuss today is that why is social media or why is actually online marketing? Okay, I can hear my own voice. Is there something, you know, there is some, are there two devices which is working right now? No, it's just one. Okay, no issues. So this is the first thing which we are going to discuss, that why online marketing is important and how COVID has affected online marketing first of all. Okay, and what is the second topic is that what is the future of digital marketing, right? So Yes, talking about the first point today, guys, see, digital being on going online and being digital is the new normal right now, right? Okay, this is the new normal. Every business, people who were not very much aware of social media marketing, very much aware of online marketing,
Still, if they have this myth in their mind, then they are definitely losing the business. Am I right, Dharmil? Yes, exactly. They are Okay, like they have that myth about online marketing. yeah. So that is why the first very important point of being online and promoting your business online is the awareness part. Okay, like if during lockdown, what happened? Suddenly, all the business shut down. Okay, all shops are closed. You are not connected to your customers anymore. अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप घर पे बैठे हुए हो, आपका बिजनेस बंद हो गया है। एंड वी ऑल्सो डू नॉट नो कि अभी आगे कैसा रिएक्शन होने वाला है, क्या लॉकडाउन होने वाला है दोबारा, फिर से हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए यहाँ फिर से लॉकडाउन हो जाए, ठीक है, या फिर जो बाइंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स है वो चेंज होगा, मैसिवली चेंज होगा बिकॉज ऑफ दिस कोविड। एंड because of that, it is very important for every entrepreneur and every businessman to be present online, to increase the awareness of their business online, to connect with their customers online. Now, how they are going to do it? Like if I talk about hotel industry, okay, hotel industry totally shut down हो गई during this lockdown period, okay. अगर हम हिल स्टेशन वगैरह की बात करते हैं तो ये उनका पीक सीजन था, अगर आप समझने की कोशिश करो। गर्मियों में हिल स्टेशन का पीक सीजन होता है, बट वो कम्प्लीटली शट डाउन गया है इस पूरे पीरियड में। Yes. बट अगर उन्होंने अपने कस्टमर से नहीं कनेक्ट किया इस बीच में, या फिर अगर अभी भी होटल इंडस्ट्री स्लो डाउन होने वाली है कमिंग मंथ्स में और वो अपने कस्टमर से नहीं कनेक्ट करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, उनके पास जितना भी डेटा बेस है उस पर वो मेल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं या फिर एसएमएस मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर अब जब होटल्स ओपन हो गए हैं तो अगर वो अपने कस्टमर्स को ये नहीं दिखा रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस कि वो क्या सैनिटाइजेशन के प्रोसीजर्स अपना रहे हैं, उनके वहाँ लोग आ रहे हैं तो वो कैसे सैनिटाइज कर रहे हैं उनको, ठीक है। Yeah, you're connected back. या अगर Go जैसे ahead. रूम्स में अगर मान लीजिए उनके कस्टमर जाते हैं, रूम्स में जाते हैं, तो वो क्या सैनिटाइजेशन प्रोसीजर जो उन्होंने रूम्स वगैरह में कर रखा है, तो ये एक तरीका है, ये एक प्रोसीजर है जिससे वो अपने कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को वापस उसी पेज पे बना सकते हैं। क्योंकि अब एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कस्टमर्स को लाने में हेल्प करेगा, वो ये होगा कि ट्रस्ट वर्जिनेस नहीं रह गई है कस्टमर्स के अंदर। लोगों को लगता है कि वो किसी भी ऐसी प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हुआ या फिर वो प्रॉपर सारे मेथड्स को नहीं अपना रहे हैं, तो मे बी उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए वो एक इट इज क्रिएटिंग अ बैड इम्पैक्ट। एम आई राइट? Yes, So this yes. will be the way through which they can connect to their customers. Okay, this is the one point which I would like to mention. The other point is that reaching a very large audience sitting at one place. Okay, अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं तो ऑफलाइन मार्केटिंग कंप्लीटली शट डाउन हो गया। ओके, अगर लोग घर में बैठे हुए हैं और लोग बाहर जाने से कतरा रहे हैं, या फिर लोग एक लिमिटेड टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, जैसे मैं भी अभी अगर बाहर जाती हूँ तो मुझे उस टाइम मुझे ये लगता है कि खट 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 मेरे पास 5 टास्क है, मुझे ये निपटाना है एंड आई हैव टू गेट बैक टू माय होम, राइट। Yes. उस केस में ऑफलाइन मार्केटिंग जीरो हो गई है, लोग खड़े होकर होर्डिंग्स नहीं पढ़ने वाले हैं, पीपल विल जस्ट वेरी मच बिजी, पीपल विल वांटिंग टू गो टू देयर होम as early as possible. Am I right? तो उस केस में Yeah. ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा ऑडियंस तक रीच करने में मैसिवली हेल्प करने वाला है। और कोविड में ऑनलाइन मार्केटिंग इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहां आप ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं कर सकते, आपके पास सिर्फ एक जरिया है अपने कस्टमर तक पहुंचने का, वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस, धर्मिल? Yes, yes, definitely. So मुझे एक question आया था. I would just frame my answer in that way. So there was a question related to education industry. So it was like लोग ने कहा था कि online marketing how it will help us in the education sector. So ओके। as everyone is doing online, the only thing I would suggest over here is दैट मैं एक एग्जांपल ये लेना चाहूंगा कि मेरे पास एक एजुकेशनल क्लाइंट है जिसको मैंने सिर्फ आई मीन ही वाज गोइंग थ्रू लाइक लैक्स ऑफ थिंग लाइक ही हैड बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उन्होंने उनका इंजीनियरिंग रिलेटेड क्लासेस है तो उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बट एट द सेम टाइम पॉजिटिविटी ये थी कि वो लोग
यही चीज के लिए रेडी थे कि हाँ आप कुछ सजेस्ट करो जिससे हमें वापस एक ऐसा पोजीशन आ जाए कि हम लोग के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है जो नेक्स्ट ईयर में ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं मुंबई, दे हैव गॉट द प्रमोशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर, और वैसे फाइनल ईयर के सिवा बाकी सबको प्रमोशन मिल चुका है नेक्स्ट ईयर में। तो उन्होंने किया कि या यू गिव मी आंसर क्या करे। then I suggested one of the online platform where they have started the lectures. Usually क्या होता है कि end of the May to first or second week of July, this period is like vacation batches they have for engineering. So I just suggested one online platform कि यहाँ पे आप you just have a paid version of it and start your online lectures. Start your online lectures. The depth that they had previously because of this lockdown is like they have started recovering back. So वो एक चीज यहाँ पे देखने मिलती है कि ऑनलाइन मार्केटिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स यू कनेक्टेड विद द पीपल हुम, आई मीन देयर आर पीपल हु आर फॉलोइंग यू। इम्पोर्टेंट वर्ड भी मैं नहीं यूज करना चाहूंगी, ऑनलाइन मार्केटिंग इज नेसेसिटी नाउ, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। And like you discuss about education industry, see education कभी भी बंद नहीं होने वाली है। मे बी ये हो सकता है कि ये साल के सारे सेशंस थोड़े डिले हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड पीरियड, लेकिन सारे एजुकेशन हम माई एजेंसीज एक्सपर्टाइज इन एजुकेशन सेक्टर, ओके, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री स्कूल्स इन आवर बास्केट and a lot of formal schools as well. So education कभी भी बंद नहीं होने वाला है। सबने वे आउट निकाल लिए हैं, सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सबकी जूम क्लासेस चल रही हैं, ऑल दैट। जो भी वे आउट उन्होंने यूज किया है, कई लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए जहाँ पे वो रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अभी ये दिस इज गोइंग टू स्टे, ओके, ये काफी टाइम तक चलने वाला है। और हर पेरेंट ये चाहता है कि उसके बच्चे की एजुकेशन नहीं स्टॉप होनी चाहिए इन सारी चीजों में, ओके। So in that sense, all formal schools are conducting online classes. All preschools have adopted online classes. Okay. Apart from that, if we go at a much higher level, they are also developing programs which can be conducted online. All the programs can be conducted online, and Yeah, connected back. am I audible now? Yeah, audible. Go ahead. Yeah. So आप किसी भी तरीके के ऑनलाइन क्लासेस को अगर आप अडाप्ट करते हो तो उसकी मार्केटिंग के लिए आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग अडाप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So this is all about education sector. Okay. Any other questions which you have got in terms of any industry? Yes, there was one fashion brand. I would say that they have an app. They are launching it in next month. But before that, they wanted to create a buzz of their app, what app they are bringing in and what kind of stuff it will have in the app and all those things. They had that. So they came up with this question, how digital marketing will help them during this lockdown to reach out to people. I mean, what app they have, क्या features रहेंगे, and वो सब चीजें digital marketing कैसे help करेगा. So I suggested them कि it's better that एक features जो है आपके app के जो features है, those features we can promote it on social media, reach out to people, reach out to fashion industry people, and we can tell them कि हाँ ये feature कैसे उनको help करेगा, either in the blog format or in the video format. वीडियो फॉर्मेट में प्रॉपरली अच्छे से कैसे फीचर वर्क कर रहा है वो दिखाना है, एंड ब्लॉग फॉर्मेट में वी कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि हाँ इस फीचर का एडवांटेज क्या रहेगा. दिस इज व्हाट आई सजेस्टेड. That is a wonderful suggestion, Dharmil. First of all, I would like to say that देखिए एप्लीकेशन कोई भी कस्टमर्स वही डाउनलोड करके अपने फोन में रखते हैं जो उनको रेगुलर यूज आता है. अगर आप अपना फोन ओपन करोगे तो आप देखोगे आपके पास वही एप्लीकेशन हैं आपके फोन में जिनको आप रेगुलरली यूज करते हो, या फिर आप रेगुलरली जाके उनको चेक करना चाहोगे. तो XYZ एप्लीकेशन मोस्टली यूज करते हैं अपने फोन में. ओके, तो जो भी लोग एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं दे हैव टू मेक श्योर कि उस एप्लीकेशन को कस्टमर्स उनको रेगुलर यूज करने पे कंपेल करते हैं. ओके,
अब वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लॉन्च की तो आप उसमें रेगुलरली अपडेट्स डाल सकते हैं रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्री। ओके, आप उनको बहुत सारी वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्लॉग के आर्टिकल्स आप एप्लीकेशन में लॉन्च कर सकते हैं। एम आई राइट? जिसके थ्रू Yes. ट्रैफिक बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर मुझे कोई ऐसी एप्लीकेशन मिलती है जहाँ पे मुझे रेगुलर फैशन अपडेट्स मिल रही हैं, टिप्स मिल रही हैं, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली उस एप्लीकेशन को अपने फोन में रखूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सेकेंड इज दैट अगर मैं उस एप्लीकेशन को फोन में रखूंगी और कल को मुझे उसमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं तो मैं डेफिनेटली उसको परचेज करने के बारे में सोचूंगी। एम आई राइट? सो दिस शुड Yeah. बी द स्ट्रैटेजी। एंड इसके लिए अपने कस्टमर से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू उनको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, बहुत ज्यादा सेल करने की कोशिश मत करिए। अगर आप सारा टाइम प्रोडक्ट सेल करते रहेंगे, मुझे अगर मैं अगर किसी की वेबसाइट पे जाती हूँ या फिर किसी भी ब्लॉग पे जाती हूँ जहाँ पे वो ऑल द टाइम सेलिंग करते रहते हैं, तो मैं शायद उससे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर समय मैं सेलिंग मोड परचेजिंग मोड में नहीं रहूंगी। कई बार मुझे इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, लेकिन अगर रिलायबिलिटी और ट्रस्ट वर्जिनेस बन जाती है तो मे बी जब मैं शॉपिंग मूड में आती हूँ तो मैं डेफिनेटली उसको जाके परचेज करने के बारे में सोचूंगी। और वो सो दिस उनके इज अबाउट सामने बार बार फैशन। आना चाहिए। एक्चुअली जो कस्टमर्स यस, है, आपके जो टारगेट ऑडियंस है, उसके सामने वो सोशल मीडिया पे बार बार आना चाहिए। एंड बिल्कुल। जो अपना जो टिप्स है जो आपने कहा वो रेगुलरली उनके सामने पॉप आउट होगा, तो यस, वो डाउनलोड करने की सोचेंगे। अथॉरिटी मिल जाती है, एक अथॉरिटी मिलती है आपके ब्रांड को। एक बार आपने वो अथॉरिटी डेवलप कर ली तो फिर आप सेल करना चाहते हो, कोर्सेज देखना चाहते हो, प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग। एम आई राइट? Yes, exactly, exactly. So you have any other industry questions? I had this three industry questions. You had any other? Yes, I also had education industry and which we discussed already. Okay. Yes. So this Right. is about that why social media marketing is important post COVID also, and post COVID तो अभी बहुत दूर की बात है, COVID में ही बहुत ज्यादा जरूरी है कि post COVID ये कब आने वाला ये है हमें we नहीं don't पता। know. हमें नहीं पता कि कब तक चलेगा. We don't know. पोस्ट कोविड हमें शायद इसी के साथ जीना है या फिर जो भी है चीजें। अभी आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन पे स्विच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट जिनकी भी शॉप्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो प्लीज ई कॉमर्स पे अपने पोर्टल चेंज कर दीजिए। आप ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी सेल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाइंग बिहेवियर मैसिवली चेंज होगा लोगों का। बीच में अगर लॉकडाउन होता है, कल को कोई और वायरस आता है या फिर कुछ भी, जितनी भी सारी चीजें होती हैं, तो उसके लिए आपका बिजनेस हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आप घर पे बैठ के अपना बिजनेस रन कर सकते। दैट इज व्हाट आई वांट टू से ऑल द एंटरप्रेन्योर्स। Right. Right. Even I had the same point कि e-commerce वेबसाइट या फिर e-commerce का अपने पास मार्केट प्लेस है फेसबुक पे. Go over यस, there, upload your products and start selling. At least यस। create awareness of what products you are having with you. एंड आई टेल यू धर्मेल, देयर इज सच अ, मतलब बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं ओके समबडी हैज रिटन कोई और वायरस आता है। हाँ बिल्कुल, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी बीच में एक न्यूज आई थी अफ्रीका में, ईबोला के काफी सारे केसेस आने लगे हैं, तो अभी यू डू एंटावायरस नॉट नो व्हाट इज, यस, व्हाट एंटावायरस इज भी गोइंग आया टू था. इवॉल्व। यस, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अगर हम ये सारे सिचुएशन के बाद भी अगर हम ये सोच के रखते हैं दिमाग में कि ओके सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और इसके बाद वापस नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, तो फिर हम अपने आप को ही मिस में रख रहे हैं। सो बेटर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारी लेडीज मार्केट प्लेस पे जाके बहुत अच्छा सेलिंग कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेलिंग कर रही हैं। लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एंड बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन सोचते रहते हैं कि वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे स्विच होंगे होंगे वो सोचते रह जाते हैं, काफी टाइम वेस्ट होता है। लेकिन उससे स्मार्ट हमारी लेडीज हैं जो घर बैठ के काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। मेरी नॉलेज में भी बहुत सारे लोग हैं। सो दैट इज व्हाई आई टेल टू My पीपल, sister does the same. My sister does the same. Like she आई एम puts टेलिंग her यू। status, इतने सारे यस, प्रोडक्ट्स का स्टेटस रहता है, एंड शी इज लाइक इससे मतलब इन लास्ट 1 year आई हैव सीन लाइक the WhatsApp marketing has turned everything yes, for us. Everything. definitely. People are making groups. A lot of ladies are interested in, you know, a particular range of products, so they are selling there. और मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म दे वो छोड़ नहीं रहे हैं। अगर आप अपना ई कॉमर्स नहीं डेवलप कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं, तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस चूज करिए और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करिए एंड स्टार्ट सेलिंग। Yes, exactly.
और एक चीज मैं एक एक्चुअली भूल गया, एक्चुअली एक डिजिटल मार्केटर है जिन्होंने भी मुझे पूछा था कि डिजिटल हाँ हाँ मार्केटिंग मतलब ही वाज क्वाइट कंफ्यूज्ड लाइक वो हम्म डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 1 साल से था है एक्चुअली, एंड ही वाज लाइक कि हम्म मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि ड्यूरिंग दिस कोविड आई डोंट हैव एनी कस्टमर्स and I want to do freelancing. How can I do? I was like, okay, but do one thing. If you have knowledge, proper knowledge, go for podcast. Go ahead with podcast and He's a give digital go. marketer. Yeah, he's a digital marketer. He Okay. has knowledge about digital marketing. But I Mm-hmm. said to him that first get your knowledge. I mean, get proper knowledge. I mean, whatever you know, इतना Mm-hmm. काफी नहीं होता काफी बार. So read, start reading things, and after Mm-hmm. that, start doing this podcast thing. It is helpful, I would say, in coming days if you have like sessions. I mean, podcast session है आपके पास, and you have done like quite a lot thing. Then by the end of 2020, I would say वो बंदा एक अच्छे पोजीशन पे रहेगा जहाँ पे he can be a consultant, digital marketing consultant बन सकता है. Yes. That is what I Tell suggested. him What to would you start a suggest self in? brand. Okay. Tell him to work on self branding. Okay. Give a lot of value addition content to people. Whatever he knows, tell him to keep learning and implementing. Okay. And maybe अपनी उस सेल्फ ब्रांडिंग में जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो अपनी एजेंसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनके लिए पहले काम किया हुआ है उनको दिखा सकते हैं, और धीरे धीरे ही विल डेफिनेटली स्टार्ट गेटिंग बिजनेस आउट ऑफ इट. Yes, yes. Uh, right. So I'll be definitely giving this suggestion. Like self branding is one thing that Yes. I suggested. That was what Yes. my idea was कि हाँ वो खुद का branding Yes. करे, क्या है आपके पास knowledge. That is what he needs to do. Okay. Yes. Going for the second question, second topic that we have today, like Mhm. what would be the future of digital marketing? Can you just throw your, I mean, idea over it? ऑलरेडी हमने इतनी सारी चीजें बता दी कि क्यों बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप ऑनलाइन मार्केटिंग पे स्विच होना. बिकॉज मुझे लगता है आप पहले 50% रेशियो रहता था ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग का, वो अब 70-30 होने वाला है. ऑफलाइन मार्केटिंग लोग बहुत कम चूज करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग पे लोग ज्यादा स्विच करेंगे. तो उस केस में अगर आप लोग ऑनलाइन मार्केटिंग पे स्विच कर रहे हैं तो उनको किन लोगों की जरूरत होगी? डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर्स की जरूरत होगी. लोग ऐसे लोगों को सर्च करेंगे जो घर पे बैठ के उनके लिए अच्छे कैंपेन्स रन कर सकते हैं. लोग ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो घर पे बैठ के उनके लिए लीड्स जनरेट कर सकते हैं, उनकी ब्रांड की पोजीशनिंग ऑनलाइन अच्छे से कर सकते हैं, एक टीम डेवलप कर सकते हैं, उनके ब्रांड को एक वैल्यू एंड अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में. और इन सारी चीजों को करने के लिए डिजिटल मार्केटर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन फ्यूचर. पहले भी बहुत ज्यादा स्कोप था, अब और ज्यादा स्कोप है. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. बट I really want to request everyone who's choosing a digital marketing career, you have to get a lot of knowledge and experience in this industry. Okay, because बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद कल से सीखना स्टार्ट करते हैं और वो आज अपने आप को एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बताते हैं, लेकिन उनकी वजह से क्या होता है, तो मार्केट में डिजिटल मार्केटर्स का नेम थोड़ा सा खराब हो जाता है क्योंकि वो कैंपेन करते हैं विदाउट एक्सपीरियंस. ठीक है, मैं हमेशा सबसे यही बोलती हूँ डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं प्लीज कहीं पे इंटर्नशिप करिए, बहुत सारा प्रैक्टिकल वर्क करिए. जब तक आप कैंपेन्स रन नहीं करते हैं, जब तक आप ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत ज्यादा अपना हाथ साफ नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको वो जो एक्सपीरियंस चीज आती है वो कभी नहीं आती. अगर आपने कैंपेन बनाना सीख लिया है तो दैट डज नॉट मीन कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है. जब तक आपने काफी सारा टाइम स्पेंड नहीं किया है, ट्रायल एरर नहीं किया है, देन जब तक वो सारी चीजें आपको नहीं आती है तब तक आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर नहीं हो सकते. सो ये एक रिक्वेस्ट है सारे डिजिटल मार्केटर से कि अगर आप क्लाइंट का वर्क ले रहे हैं तो प्लीज उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए. अगर आपको नॉलेज है, जैसे अगर आप फेसबुक कैंपेन में आप एक्सपर्ट है तो सिर्फ फेसबुक कैंपेन करिए, प्लीज डू नॉट गो फॉर एडवर्ड्स. लोगों को लगता है कि वो फेसबुक, अगर उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है तो वो एडवर्ड अपने आप में ही बहुत डीप है. अगर आप एम आई राइट धर्मेंद्र? एडवर्ड अपने आप में बहुत ज्यादा डीप है. अगर आप एसईओ कर रहे हैं, एसईओ अपने आप में बहुत डीप फील्ड है. अगर आप एसएमओ कर रहे हैं, कैंपेन रन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत डीप टॉपिक है. तो जस्ट चूज अ थिंग इन विच यू आर एक्सपर्ट.
एंड डू yes, इट प्रॉपरली, जिससे डिजिटल मार्केटर्स का नाम मार्केट में खराब ना हो। आप खराब काम करके मत दो, जिससे एटलीस्ट जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी उनको मिले। प्रॉब्लम उनको बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। लाइक लाइक बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे जो चीज नहीं आती वो मैं छूने की कोशिश भी नहीं करता। मैं इफ भी आई नहीं, नो सेम है। एडवर्ड्स, if I am not very handy on AdWords, so मैं हम्म। मुझे जब AdWords का काम आता है, I give it outside or I hire a resource. This is when I was doing freelancing, not now, यस because now we have resources working on AdWords and all. But when I यस was doing freelancing, I used to give it outside because उससे आपने जैसे कहा कि डिजिटल मार्केटिंग का ओवरऑल नाम खराब होता है कि हाँ बिल्कुल ये पैसा डाल के वेस्ट हो गया. That is not what बिल्कुल। we want. Same as with me also. See, I have my team in my agency. There is a separate SEO team. So I make sure I have experts there sitting. I guide them, but I make sure they are doing the work in which I am expert. I choose that field in which my team is expert. I'm guiding them. I'm letting them do it. So in that way, मैंने बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स जो आते हैं जो बोलते हैं कि किसी भी डिजिटल मार्केटर ने उनसे मे बी एक्स वाई जी अमाउंट ऑफ मनी ले लिया, उन्होंने कहा कि वो उनको लीड प्रोवाइड करेंगे और उनका सारा पैसा खराब हो गया। लोगों को लगता है कि ओके चलो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से तो सब स्क्रैप आ रहा है, जो कि रियलिटी में ट्रूथ नहीं है। So in that Yeah. sense, वो सारा नेम खराब होता है। तो that is why I say कि choose a particular field, get expert in it, do a lot of practical work, do internship, spend time on it, and then go taking the work and do it properly. That is what I want to say. And there is a lot of hope. अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जितनी भी लॉन्च करती है वो ऑनलाइन ही लॉन्च करती है। हमारे कोविड में भी बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन चीजें लॉन्च की गई हैं जिसके थ्रू हम ट्रेस कर पाए कि कितने लोग इफेक्टेड एंड ऑल। सो एवरीवेयर देयर इज ऑनलाइन मार्केटिंग एंड इट इज हैविंग अ ह्यूज स्कोप इन फ्यूचर। Yes, yes, exactly. ऑल्सो फॉर डिजिटल मार्केटर्स, दोज हु आर डिजिटल मार्केटर्स, अगर उनके लिए स्कोप आप पूछना चाहोगे मुझसे, तो आप अपने कोर्सेज भी लॉन्च कर सकते हो इन फ्यूचर। अगर आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हो और आपको वो चीज अच्छी से आती है तो आप लोगों को सिखा सकते हो, अपने कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो, क्लाइंट्स के लिए वर्क कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। किसी बड़ी कंपनी में आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर सकते हो आफ्टर डूइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ work for a particular number of years if you are having experience in it. So you can definitely develop your profile and get a good amount of work in digital marketing. Yeah, and you can attend Parul's courses that she launches every now and then somewhere or the other. Thank you so much. Definitely, if you want to learn digital marketing, you can contact me. Otherwise, if you are an entrepreneur, if you are a businessman and you have any doubt regarding to your brand, you can definitely ping us. We will help you out. Yes, definitely. Uh, okay, there was one question related. I mean, it is out of this context. Mhm. He said that how many hashtags we should use for an Instagram post. मैंने उनको 30 बोला था. Don't go ahead of 30. Like बहुत Mhm. बड़ा लगता है काफी बार कि हाँ कितना या बड़ा है. एक्चुअली क्या होता है कि आप कमेंट्स में हैशटैग भी लगा डाल सकते हो, और क्या कर सकते हो कि आप हैशटैग्स एटलीस्ट 25 तक हैशटैग्स आप चूज कर लो। ठीक है, और मिक्स एंड मैच हैशटैग की आप एक पूरी सीरीज बना सकते हो। आपको देखना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर्स की प्रोफाइल पे भी जाके कि वो लोग कौन से हैशटैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, किस हैशटैग्स पे कितनी रीच है एंड ऑल दैट करके आप पूरा एक लिस्ट बना लो, और उस लिस्ट को ही आप हर पोस्ट पे यूज करो। प्लस पोस्ट का हैशटैग जरूर डालिए, अपने नेम का एक हैशटैग जरूर डालिए, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क, हेल्प यू आउट। Yes, बट इट इज yes, वेरी and इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस इट। yes, and there was, I mean, there is one more thing that I would say over here. I have seen in last few months that people have started dropping messages on Instagram directly to the companies, directly to the person. Like अगर known person है उसको messages करते हैं and all. But keep it limited. Don't go for more than 20 or 15 to 20 messages फॉर every day. कोलैबोरेशन, या फॉर कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन। के लिए, यस या यस, बिकॉज काफी बार क्या होता है कि आप मैसेजेस पे मैसेजेस करते हो, इंस्टाग्राम विल ब्लॉक यू फॉर अ वीक. दैट इज व्हाट इवन माय प्रीवियस आई मीन वन ऑफ आवर क्लाइंट्स दैट वो ब्लॉक कर देता है कि हाँ lot मैसेजेस of किए जा रहे messages, हो lot of ऐसे. following, these all ना Instagram keeps on tracking it, okay? And अगर बहुत सारा आप unfollow, बहुत सारा follow, बहुत सारे messages वगैरह कर रहे हो, तो there is an alarming tone for you that your account might get blocked, okay? So keep a check. Also on Facebook, do not do a lot of sharing and everything, okay? Yeah, Use it I mean, sensibly. yeah, whenever you are joining any group, there are
terms and conditions that they display. Check those terms and Yes. conditions. And admin might block your sharing thing, and it will block. I mean, Facebook can block you for a week time. So Yeah. just do all this stuff at the time of joining. That is one question, and there was one more question. Just a moment. Yes. How can we do organic marketing on Instagram? Like, how can we increase followers on Instagram? That is what the question was. Uh, there was one thing that I suggested, that a few users related to your niche, you can follow them and get the follow back. That is what nowadays people do. This was one of the suggestions that I gave. There are a lot of tricks which I have mentioned in my Instagram mastery blueprint. If you guys want to check it, you can just go and check it out. It's there in my link in bio. Apart from that, organic marketing on Instagram is quite a difficult task these days. Okay, because organic has become really low. But few things which I would like to mention. आपकी प्रोफाइल का बायो, आपकी प्रोफाइल पे आप क्या हैशटैग यूज कर रहे हो, ठीक है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कितना फॉलो कर रहे हो, कहाँ पे कमेंट कर रहे हो, कहाँ पे क्या लाइक कर रहे हो, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. आप रेगुलरली कितना कंसिस्टेंट हो अपनी प्रोफाइल पे, आप कैसा कंटेंट थ्रो कर रहे हो, उस कंटेंट को कहाँ फ्लोट कर रहे हो, फेसबुक के ग्रुप से, फेसबुक के पेज से आप कैसे रूट कर रहे हो अपनी ऑडियंस को इंस्टाग्राम पे, आप कैसे उनको वहां बोल रहे हो कि इससे ज्यादा अगर आपको कुछ इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फॉलो मी इफ यू वांट टू गेट regular updates on XYZ topic. Are you getting me? So that way, organic can actually help you. Apart from that, if you want to have more tips related to this and you really want to learn that what are the tricks, you can definitely check Instagram Mastery Blueprint if you guys want. It is there. It is having a deep and core knowledge about Instagram. Yep. So these were the questions that I got from the users. Okay. You have any other questions that No, you I can? think we have covered everything. Okay, सारे जो छोटे questions थे और industry wise थे, हमने सब मिला के हम combined questions के answer कर दिए हैं. I think we have covered everything. We have covered all the 6 topics in these 3 sessions which we had. Okay, and in the last week, definitely in future we are going to have more session, and it was wonderful to talk to you, Dhamil, regarding these important points, which is very important to be focused in this COVID period. Do you want to give any kind of message to all the people who are connected and who were connected in the previous sessions as well? I would just say that we are still open. You can just drop us a message anytime during the week, and we will definitely have this session back. We will definitely Yes, have one topic in our mind that we will be having a live session in coming days yes, related to retargeting. So definitely. that will give you, I mean, we'll keep you posted. But other than that, if you have any other queries, do let me know, or Parul, just give a message to Parul, and we both will be always be there for you to solve your queries. That Yes, is the one thing. recorded session of this live will be there on Right Digisoul page. So just go and drop a comment over there and put, take a screenshot and tag us on your story. Marketing, and if you want to have similar sessions in future, then please let us know and on what topic you guys want, then we are definitely here to solve your problem. For all the Yes. businessmen, all the entrepreneurs, all the digital marketers who are having questions regarding digital marketing as to choose digital marketing as a career, we are here for you. Yes. And thank you so much, Parul, for just My accepting the pleasure, invitation to our absolutely. show. It was a wonderful experience, wonderful session, so many questions, so many queries, and it was really amazing. Thank you. Same here, same here. So just before closing this call, if anyone of you who have joined, if you have any queries, we have just 1 minute left. You can just go ahead and drop your queries, and we'll solve now itself if anyone has it. Yeah, if anyone of you has any question, please drop the question here. Otherwise, these sessions are coming again in future related to digital marketing. We'll keep on searching some important topics for you. And one important topic
When one important question which many of you have asked, that what about retargeting ads? Definitely, why it is important and how to do it effectively. We are definitely going to have a session in this week itself. We will inform you the date. We'll keep you posted. And thank Yeah, you so much, guys, for joining. And thank you, Parul, for joining. absolutely my pleasure. Thank you so much, Ramji. Thank you Okay, so much. Take care. Bye. Stay home. Stay bye safe. bye. Take care. Stay safe. Bye bye. Bye.